Hello, good morning student. Today we are going to learn here our new point of this lesson, that is a chemical property of a non-metal. Actually in our previous class we have learned there physical property of metal, physical property of non-metal, yes, as well as we have learned the chemical property of metal. Yes, with experimental activity we have learned there in detail. Actually today we have starts yes about the केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। चलिए नॉन मेटल को लेकर हम यहाँ पे भी केमिकल प्रॉपर्टी लर्न करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो वी विल गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। टुडे what we will learn here, actually we will learn here the reaction of non-metal with reaction with oxygen, reaction with water, yes, reaction with dilute acid, yes, and reaction with the hydrogens. These four type of the chemical reactions we have learned here. देखिए I have again repeated reaction with oxygen, this is reaction with water, reaction with dilute acid, and reaction with a hydrogen. So we have started in detail. We have learned here the reaction with oxygen. Actually, non-metal react with oxygen. So I have asked one question. What is mean by non-metal? Actually, you know about the non-metal because we have learned in our previous class. So, can you tell what is mean by non-metal? Non-metals are a collection of element. Yes, okay. That's having yes less similarity in physical and chemical properties, है ना बेटा? ऐसे हमने उसको लर्न किया था, as well as we have learned the another terms. Yes, okay. Define the non-metals. Yes. So what is this? That is a non-metals are a they gain the electrons, gain the electrons. Yes, okay. That is a gaining ability of the electrons in a non-metal. Actually, non-metals are also called as a electronegative elements. Electronegative elements. Why? Because they are called as electronegative elements because they possess a minus ion, that is a नेगेटिव आयंस, है ना बेटा? तो वो नेगेटिव आयन को क्या करते हैं बेटा? पजेस करते हैं, धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, है ना? तो इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? दैट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना? एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स होते हैं, yes, that is electronegative charged ions. Why? Because they have a electronegative charge, because they accepting the electron, by accepting the electrons. तो देखिए बेटा ये जो नॉन मेटल्स है ना, इसको लेकर हम आज यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, है ना बेटा? तो दैट इज अ नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दैट इज अ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखिए ये वाली रिएक्शन हम यहाँ पे लर्न करेंगे। सो हियर वी विल लर्न नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। देखिए जैसे मेटल जैसे यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जैसे मेटल भी ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होते थे तो वहाँ पे मेटल के ऑक्साइड्स मिलते थे। इसी तरह से यहाँ पे नॉन मेटल जैसे कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। देखिए जो ऑक्साइड्स यहाँ पे बनते हैं वो हमें एसिडिक रूप में मिलते हैं, बेसिक रूप में मिलते हैं और न्यूट्रल के रूप में मिलते हैं। लेकिन देखिए बेटा हम जैसे मेटल को लेकर वहाँ पे लर्न किया था तो एक्चुअली वी हैव गेट्स द अल्कली फॉर्म्स, है ना? मीन्स मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, that time they form the oxides of metal and they are the in alkali forms. वो हमें अल्कली फॉर्म के रूप में मिलते थे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ पे हमें एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल्स ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है? यानी कि
नॉन मेटल के ऑक्साइड्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। अप टू देन देखिए, जो मोस्टली रिएक्शन हमें यहाँ पे होती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पे हमें एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाई देती है, जैसे कि एसिडिक ऑक्साइड्स यहाँ पे मिलते हैं मोस्टली नॉन मेटल को लेकर। ठीक है बेटा, और कभी कभी हमें यहाँ पे न्यूट्रल्स फॉर्म में जो उसके प्रोडक्ट मिलते हैं, कभी यहाँ पे हमें बेसिक फॉर्म में प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ऐसे तीनों ही फॉर्म में यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, लेकिन एक्चुअली जनरली दिस नॉन मेटल रिएक्ट विथ oxygen, that time it gives the non-metal oxides and they are generally, yes, in which form, that is a acidic। ठीक है, और मेटल को लेकर हमने वहां पे लर्न किया था, तो वहां पे हमें बेसिक दैट इज अल्कली ऐसे यहाँ पे हमें मिलता था। ठीक है बेटा, तो देखिए हम यहाँ पे अभी क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम एक्चुअली अभी ये रिएक्शन कैसे कैरी ऑन होती है इसको हम यहाँ पे देखेंगे, लर्न करेंगे सिंपली। ठीक है, तो देखिए बेटा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, जैसे हम हाउ द रिएक्शन परफॉर्म्स हियर। सो आई हैव टेक हियर द वन दैट इज अ कार्बन एंड ऑक्सीजन, जैसे ओके आई हैव शोन हियर। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन बताई है, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लेवल है जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए बेटा, एंड व्हेन द रिएक्शन परफॉर्म्स व्हाट हैपन, yes, we have obtained the product that is a CO2 in form of a gas। किस रूप में मिल रहा है बेटा, यहाँ पे गैसेस के फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। एक्चुअली दिस इज वन हैव अ एसिडिक फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम दूसरी वाली रिएक्शन एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, तो जब ये ऑक्सीडेशन कैरी ऑन करेगा तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है बेटा, दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड्स यहाँ पे मिलता है, जैसे कि ये हमें यहाँ पे जैसे उदासीन, जैसे हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। आफ्टर देन देखिए बेटा, सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और जैसे सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है बेटा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ गैस है ना, ये मिलता है। एक्चुअली दिस इज वन हैव इन अ दिस बेसिक फॉर्म। देखिए बेटा, तो यहाँ पे मैंने तीन फॉर्म बताए हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन और सल्फर। ये वाले कौन है बेटा, यहाँ पे नॉन मेटल्स है। अभी इसी नॉन मेटल को हम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो देखिए जैसे कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता था, है ना बेटा, तो देखिए तो वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, दैट इज वन हैव अ एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दूसरे फॉर्म में देखिए बेटा, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है ना, कोक के रूप में होगा, तो जैसे हम उसको क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो यहाँ पे वो न्यूट्रल फॉर्म बताता है, न्यूट्रल फॉर्म बताता है ना, दैट इज अ न्यूट्रल फॉर्म है ना। तो देखिए इसके बाद हम सल्फर को लेकर देखते हैं, जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं, है ना बेटा, दैट इज अ बेसिक फॉर्म, हम इसको अल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन जैसे हमने यहाँ पे क्या लर्न किया बेटा, जैसे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जब बनते हैं तो वो हमें एसिडिक रूप में मिलते हैं, बेसिक रूप में मिलते हैं और न्यूट्रल के रूप में भी वो मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जनरली हम यहाँ पे कौन सा भी जैसे नॉन मेटल हो, जनरली जो उसके जो फॉर्म्स हो गए एसिड के रूप में ही मिलते हैं, है ना बेटा। मेटल को लेकर हमने वहाँ पे क्या देखा था, मेटल when react with oxygen that time they form the metal oxides, yes, and they are the alkali in a nature, उनका नेचर कैसा होता है, अल्कली। और यहाँ पे हम जैसे नॉन मेटल को लेकर जब जनरली हम उसको लर्न करते हैं तो हमें यहाँ पे जनरली क्या दिखाई देता है बेटा, जैसे कि एसिडिक नेचर दिखाई देता है, बट एसिडिक के साथ ऐसे कुछ मेटल जैसे कि वो बेसिक नेचर भी प्रोडक्ट के रूप में बताते हैं, न्यूट्रल नेचर भी वहाँ पे बताते हैं। देखिए बेटा, ये यहाँ पे हमें लर्न करने के लिए मिलता है। ठीक है, सो वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड।
Student, we have done here the reaction with water. Yes, okay, that is a non-metal react with water. Actually, we have known about the just non-metal. Just non-metal do not react with water. Non-metal water के साथ रिएक्शन बताते नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिलता है, जैसे कि हेलोजन को लेकर, एक्सेप्ट हेलोजन. ठीक है, तो देखिए हेलोजन रिएक्ट विथ वाटर. यस, why? Because halogen react with water, because halogen have a high reactivity rate, and due to their having high reactivity rate, yes, it's a easily react with water. ठीक है, अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे होती है ये कैसी परफॉर्म होती है, हम यहाँ पे अभी इक्वेशन के रूप में यहाँ पे लर्न करेंगे. देखिए बेटा, I have arranged the equation here. देखिए, just that is a Cl2, that is a chlorine in form of gas, another we have take added into the water. Yes, okay, liquid form में. Actually देखिए बेटा, अभी these are one have a reactant. ठीक है, and when the reaction takes place we obtain the products. Yes, which product we obtain here? That is a HOCl, that is a oxychlorides, that is a ऑक्सीक्लोरोहाइड्रेट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं, है ना. इसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है बेटा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे मिलता है, एक्वस के रूप में मिलता है. क्यों एक्वस के रूप में क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे वाटर्स, एक्सेस वाटर है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? कैरी ऑन होती हुई हमें दिखाई देती है. यस, इट्स अ वेरी सिंपल वन हियर. Here we will learn the next one reaction, that is a reaction with a dilute acid. Non-metal react with dilute acid. Actually, non-metals does not react with acid. Non-metal जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन नहीं बताते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. देखिए बेटा, हमें यहाँ पे शुरू से जैसे कि प्रॉपर्टी को जैसे लर्न करते थे तो वहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिल रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे हमें एक्सेप्शन दिखाई देते हैं. तो देखिए, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है हेलोजन. तो हेलोजन, यस, इट्स रिएक्ट विथ एसिड. ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हेलोजन जो होते हैं जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, these are one have halogen group and they show the, yes, okay, that is a high reactivity rate. और इसी कारण यहाँ पे ये जो हेलोजेंस है वो वाटर के साथ भी रिएक्शन कैरी ऑन कर रहे हैं, इसी के साथ वो एसिड के साथ भी क्या करते हैं बेटा? रिएक्शन को कैरी ऑन करते हुए दिखाई देते हैं. देखिए ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज अ एक्सेप्शनल हियर. So we have carry the reaction. Actually, how the reaction takes place here. So I have shown here the equation. So I have arranged the equation here. देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे equation को अरेंज किया है, जैसे कि क्लोरीन गैस, that is a Cl2 गैस के रूप में यहाँ पे हमने लिया है यहाँ पे, और हम इसको क्या करेंगे बेटा? Yes, we have yes pass into the हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दैट इज एक्वस फॉर्म में. हमने उसका एक सॉल्यूशन लिया है लिक्विड के रूप में, एक्वस है वो, और उससे हम क्या करेंगे बेटा? क्लोरीन गैस को उसमें से पास करते हैं. तो क्या होगा? एक्चुअली देखिए रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगी एंड वी हैव ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स हियर. हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा? जैसे कि हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा, ब्रोमीन यहाँ पे हमें वाटर के रूप में, जैसे कि एक्वस के रूप में यहाँ पे मिलता है. ठीक है, तो ये वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं. तो देखिए इस रिएक्शन में हमें क्या होते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी रेट है, जैसे कि क्लोरीन यहाँ पे कौन है? हेलोजन. ब्रोमीन भी यहाँ पे कौन है बेटा? हेलोजन. अभी ये जो हेलोजन होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस क्या कर रहा है बेटा? जैसे कि ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हुए यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड्स मिलते हैं, यहाँ पे कंबाइन हो रहा है.
है ना। जैसे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन क्या कर रहा है बेटा, तो एक्चुअली ब्रोमीन इसकी जो एबिलिटी यहाँ पे दिखाई देती है, दैट इज हाई ऑक्सीडिंग एजेंट और हाई ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ब्रोमीन को लेकर यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और जैसे ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो जैसे कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में से यहाँ पे ब्रोमीन क्या होता है बेटा, सेपरेट हो रहा है। ये देखिए ब्रोमीन यहाँ पे सेपरेट होता है, और जैसे ब्रोमीन सेपरेट होगा तो एक्वेस के रूप में यहाँ पे सेपरेट होते हुए दिखाई देता है। तो देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा सही ढंग से यहाँ पे प्रॉपरली लर्न कीजिए और याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। और रिएक्टिविटी रेट, देखिए बेटा रिएक्टिविटी रेट यहाँ पे हाई है, किसकी, हेलोजन की। समझ में आ रहा है। सो वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, we have learned the one interesting property of non-metal. Yes, okay, that is a reaction with hydrogen. Non-metal react with hydrogen. Very interesting one. देखिए बेटा, ये जो नॉन मेटल होते हैं ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं, बताते हैं, लेकिन इस इन अ सर्टेन कंडीशन, दे हैव अ लिमिटेशन देयर। अंडर द लिमिटेशंस, अंडर सर्टेन कंडीशन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक विशेष रूप से हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलती है। तो देखिए बेटा, ये जो नॉन मेटल होते हैं, हाँ, हाइड्रोजन जैसे कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन उनको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, वहाँ पे एक लिमिटेशन हमें दिखाई देता है, और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर हमें यहाँ पे पूछा जा सकता है। इट्स ओके, इन विच सर्टेन कंडीशन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो देखिए बेटा, ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसे कौन से लिमिटेशन से यहाँ पे हमें लर्न करने के लिए मिलते हैं। जैसे कि देखिए बेटा, ये जो कंडीशंस हमें दिखाई देती है, पहली कंडीशन है जैसे कि प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर, है ना। कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट होगा तो वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर में ही रिएक्शन वहाँ पे कैरी ऑन होगी, है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा वाला प्रॉपर प्रेशर, यहाँ पे प्रॉपर प्रेशर एक कंडीशंस वहाँ पे हमें क्या करती है बेटा, दिखाई देती है। इसी कंडीशन में वो रिएक्शन फॉलो होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद कैटेलिस्ट, यहाँ पे कुछ कैटेलिस्ट को वहाँ पे क्या करना पड़ता है बेटा, वहाँ पे रोल प्ले करना पड़ता है। तो कैटेलिस्ट क्या होते हैं, हमें तो पता है कैटेलिस्ट। यस, तो कैटेलिस्ट दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बट दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कैटेलिस्ट, यहाँ पे कुछ कैटेलिस्ट यहाँ पे हमें क्या करते हैं बेटा, वो एक हमें यूज करने पड़ते हैं सर्टेन कंडीशन के रूप में। तो देखिए, तो हम यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ इक्वेशन यहाँ पे हमें कैरी ऑन करते हुए यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पे पहले इक्वेशन यहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ, जैसे कि सल्फर है, ठीक है, और हाइड्रोजन है। तो देखिए बेटा, सल्फर सॉलिड के रूप में है, हाइड्रोजन एक गैस के रूप में है। और जैसे देखिए बेटा, सल्फर जैसे हम ऐसे ओपन प्लेस में रख देते हैं, है ना, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं बेटा, कंडीशन फॉलो करेंगे। जैसे टेम्परेचर, एक स्पेशल टेम्परेचर में हम इसको कैरी ऑन करेंगे, रिएक्शन हम प्रोसीड करेंगे, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मिलने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में हमें मिलेगा। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, तो ही रिएक्शन यहाँ पे कैरी ऑन होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली रिएक्शन, जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए बेटा, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट होगा तो यहाँ पे हमें अमोनिया मिलता है, लेकिन ये जो अमोनिया यहाँ पे मिलता है, तो ये भी हमें एक सर्टेन कंडीशन में, जैसे कि एक सर्टेन टेम्परेचर, वहाँ पे प्रेशर, ये दोनों को फॉलो करते हुए ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, कैरी ऑन होगी।
है ना, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स, yes, okay, under a certain condition. Which condition? Yes, that is a specific temperature and pressure. Yes, we have obtained here the, that's ammonia. तो यहाँ पे हमें अमोनिया मिलेगा। ठीक है ना बेटा, देखिए है ना स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग वन। चलिए इसे हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यस वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Student, we use your brain power and try to answer the question here. Very interesting question, tricky question, and such question asked in your exam is very important here. So, which questions are given to you? That's questions. Yes, I have represented. Can this ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड ऑक्सीडेशन? चलिए बेटा अभी देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो आई हैव गिव हियर दैट इज अ कंसिडरेशन रिएक्शन। yes, it's shown here, that is consider the reaction of a chlorine and hydrogen bromide. This okay? Actually देखिए बेटा, yes, I have tried to arrange this equation. जैसे देखिए बेटा, I have take here the, that is a Cl2, that's a chlorine in form of a gas. Another I have take here just, that is a HBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देखिए these are हाइड्रोजन ब्रोमाइड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये रिएक्टेंट लिए वाले हैं। अभी जिसे हमें देखिए यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा? जैसे देखिए बेटा, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है कि देखिए बेटा HCl मिल रहा है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HCl। ठीक है ना बेटा, देखिए HCl मिल रहा है, एसिड के रूप में मिलेगा, ठीक है, एक्वेस के रूप में। इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? जैसे कि देखिए यहाँ पे Br, ये जो Br मिल रहा है यहाँ पे, इस सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, ये वाला Br। चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो रिएक्शन इस लिख दिए वाली है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा? तो एक्चुअली यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन होता है ना? ये कैसे पता चलता है ऑक्सीडेशन? देखिए बेटा, हमने पहले कभी लर्न किया वाला है, ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? दैट इज जस्ट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए ये जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन की रिएक्टिविटी रेट है, ये बहुत ही क्या है, हाई है, यहाँ पे बहुत ही हाई होती है। ठीक है, एक्चुअली ब्रोमीन के तुलना में। देखिए दोनों हेलोजन है, यहाँ पे क्लोरीन भी हेलोजन है, ब्रोमीन भी हेलोजन है, आयोडीन भी हेलोजन है। यहाँ पे नहीं लिया है अपने आयोडीन का एग्जांपल, है ना? जो स्टेटन दीज आर वन है सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हेलोजन, ये हेलोजन की यहाँ पे सीरीज मिलती है। तो उस सीरीज में यहाँ पे क्लोरीन ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करता है बेटा, बताता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे क्लोरीन को हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में उसको हम लर्न करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए उसका जो सीक्वेंस होता है तो हमें यहाँ पे हाई रेट में मिलता है। तो क्लोरीन ये देखिए बेटा ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है, ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन कौन है, पावरफुल है, क्लोरीन कौन है बेटा, यहाँ पे पावरफुल है। तो यहाँ पे क्लोरीन ये क्या करता है बेटा, ब्रोमीन को रिप्लेस करता है, और जैसे ही ब्रोमीन को रिप्लेस करता है तो ब्रोमीन क्या होता है बेटा, सेपरेट आउट होता है। देखिए ब्रोमीन यहाँ पे पूरी तरह से सेपरेट आउट होके यहाँ पे अलग प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बेटा जैसे एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बनता है।
तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट के रूप में यहाँ पे किसको हम देखते हैं, क्लोरीन को। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली देखिए हाइड्रोजन वैसे की वैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्चुअली देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन रिप्लेस हो रहा है, ब्रोमीन रिप्लेस होता है, और ब्रोमीन की जगह यहाँ पे क्लोरीन को क्या करे बेटा, वो ऑक्यूपाई करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है ना। देखिए इसके बाद नेक्स्ट, इन द रिएक्शन बिटवीन द क्लोरीन and hydrogen bromide, a transformation of a hydrogen bromide into the bromine takes place. Which oxidant that brings about this oxidation? देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल यहाँ पे रेज करूंगा, जैसे कि देखिए बेटा, इस सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिए। कैन ब्रोमीन ऑक्सीडाइज HCl? देखिए बेटा, मेरा सवाल कैसा है, कैन ब्रोमीन ऑक्सीडाइज HCl? दैट टाइम योर आंसर ऑफ कोर्स यस वी हैव गिव इट, दैट इज अ नो, है ना। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या करता है बेटा, ये जैसे कि HCl को यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोरीन की रिएक्टिविटी रेट, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टिविटी जो होती है ना, प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे ब्रोमीन से क्या है, ज्यादा है, इसी कारण। तो यहाँ पे क्या करा है बेटा, क्लोरीन जैसे कि ब्रोमीन को डिस्प्लेस करता है, और जैसे ब्रोमीन डिस्प्लेस होता है तो यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाई देती है, क्लोरीन की, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी रेट यहाँ पे तुलना में क्या है बेटा, कम है, क्लोरीन की तुलना में। समझ में आ रहा है। देखिए इसी को लर्न करने के लिए हम यहाँ पे अभी एक इक्वेशन देखते हैं, इसको हम बैलेंस करते हुए अभी हम यहाँ पे इसको लर्न करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पे क्लोरीन एंड HBr, ये दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट लिए वाले हैं, और जैसे ये रिएक्शन कैरी ऑन होगी तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा बेटा, जैसे ब्रोमीन मिलेगा, दैट इज Br2 एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे हमें मिलेगा, है ना बेटा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या लर्न करने के लिए मिल रहा है, जैसे कि देखिए बेटा, ये जो क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा, ये क्लोरीन पूरी तरह से देखिए बेटा ब्रोमीन को क्या करता है, डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, इसकी रिएक्टिविटी रेट यहाँ पे क्लोरीन की ज्यादा है, ब्रोमीन की कम है, और एक कम रिएक्टिविटी रेट वाला ब्रोमीन ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमें सेपरेट होते हुए दिखाई देता है, प्रोडक्ट में Br2 के रूप में सेपरेट अलग हो रहा है पूरी तरह से। ठीक है, और इसकी जगह यहाँ पे कौन ले रहा है, यहाँ पे जैसे कि इसकी जगह यहाँ पे क्लोरीन लेता है, और हमें HCl ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना बेटा। तो देखिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन ब्रिंग कर रहा है बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन ब्रिंग कर रहा है। तो ये यहाँ पे बात हमें पता चलती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देकर, है ना बेटा, अंडरस्टैंड करते हुए हम इसे लर्न करना है। कोई डाउट हो तो जरूर यहाँ पे पूछना है। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ पे इस रुकते हैं, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है। ठीक है। थैंक यू।